alaikum, dear students. Today we will do another experiment. We will perform another experiment here. And this experiment we will measure the internal resistance of a cell, primary cell. And the instrument that we have to use here is again the same instrument which is called potentiometer. And अदर इंस्ट्रूमेंट्स जो इससे पहले हमने एक्सपेरिमेंट किया है जहां पे हमने कंपेयर किया था एएमएफ ऑफ टू प्राइमरी सेल्स, तो उसमें जो इंस्ट्रूमेंट्स हमने यूज किए थे वही इंस्ट्रूमेंट्स ऑलमोस्ट सारे के सारे यूज होते हैं. तो एक्स्ट्रा एक इंस्ट्रूमेंट यूज होता है, दैट इज द रेजिस्टेंस बॉक्स अलोंग विद वन वे की. ठीक है ना. तो वहां पे जो इससे पहले हमने एक्सपेरिमेंट किया कंपैरिजन ऑफ एएमएफ सेल ऑफ टू प्राइमरी सेल, वहां पे हमने दो सेल्स ले लिए, बट इन दिस experiment we will take only one cell. ठीक है ना. That is the leak launch cell. That depends on you whether you take the Daniell cell or the leak launch cell. यहाँ पे हम leak launch cell ही यूज करेंगे. leak launch cell की ही internal resistance हम मेजर करेंगे. Daniell cell की भी internal resistance मेजर कर सकते हैं. किसी और primary cell की भी resistance आप मेजर कर सकते हैं. तो एक बार हम ये एक्सपेरिमेंट करेंगे. First and foremost I will show you the circuit diagram. तो same circuit diagram है. तो circuit diagram से start करेंगे. First सर्किट डायग्राम. ठीक है ना. जो सर्किट डायग्राम है, we'll draw a potentiometer here which consists of four wire potentiometer. Okay, and now consider, suppose these are the four wires of a potentiometer. Wire number 1, wire number 2. As you know that they are held parallel to each other, and these four wires are connected together in series. They are held parallel but are connected in series. Suppose this is end A, free end, and A. Okay, इसका नाम रखिए end A. And this is now connect the first wire with the second wire in series with the help of a copper strip. यहाँ पे मैं दिखा दूंगा. ये copper strip से हम इसको जोड़ते हैं यहाँ पे. इसी तरह से सेकंड और थर्ड सीरीज में कनेक्ट करेंगे. इस तरह से एक चेन बनाएंगे. कॉपर स्ट्रिप यहाँ पे भी, एंड थर्ड एंड फोर्थ वायर इसी तरह से कनेक्ट करेंगे आपस में. इस तरह से यहाँ पे कॉपर स्ट्रिप से. इज दिस क्लियर? एंड द फ्री एंड इज हियर. इसका नाम रखेंगे बी. सो ए एंड बी आर द टू free ends of a potentiometer wire. Okay, four wires are there. All the four wires are connected in series. ठीक है ना. Therefore, the total length of the wire in this case is 4 meter. Each wire is 4 meter long, and each wire is made of the same material. एक ही material की cross section भी same है. Everything is same. Okay, and wooden scale is there. तो वो यहाँ से हम ड्रा करेंगे. ऊपर से भी ड्रा कर सकते हैं. जैसे कि हमारे पास जो इंस्ट्रूमेंट यहाँ पे है उसमें यहाँ से दिखाया है वुडन स्केल, तो हम भी ऊपर से दिखाएंगे ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो. दिस इज द वुडन स्केल हियर. 1 2 3 4 5 6 डैश 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 इसी तरह से 100 सेंटीमीटर तक. फिर 0 1 2 3 डैश 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 99 and 100. ठीक है. इसकी ऊपर भी स्केल लगी है इसी तरह से. ओके. This is the potentiometer. All this arrangement, as you know, that is fitted on a wooden board. Okay, and now, first and foremost, we require an auxiliary circuit. The auxiliary circuit we require a driver battery. या driver circuit भी इसको कहते हैं. एक driver battery चाहिए हमें. And along with the driver battery, driver battery के साथ rheostat, one way key, ammeter. ठीक है ना. जैसे कि इससे पहले मैंने बता दिया. तो यहाँ पे ये we will take this and positive end. तो पॉजिटिव यहाँ से बैटरी का, this negative, positive, negative. ठीक है. Okay, this is the positive terminal of the battery, this is negative terminal, and we will connect a one way key here, and then we will connect millimeter here, millimeter, the ampere meter. मिली एम्पियर्स में हमें करंट पास करनी है. ज्यादा एम्पियर्स में करंट पास नहीं कर सकते, उससे ज्यादा हीट प्रोड्यूस हो जाएगी, उससे ये
वुडन बोर्ड जो है वो उसको जलने का खतरा है, तो स्मॉल करंट वी विल मेंटेन थ्रू द पोटेंशियोमीटर वायर, ठीक है। एंड यहाँ पे फिर बनाएंगे हम रियोस्टेट इस तरह से। This is the rheostat. Rheostat, one way key here. This is the battery here. Okay. This is what we call auxiliary circuit. जैसे इससे पहले वाले सर्किट मैंने बता दिया, वहां पे मैंने बैटरी ऊपर लगाई, फिर उसके साथ एमीटर लगाया, फिर वन वे की, फिर rheostat. This doesn't make any difference here. तो ऑर्डर हम चेंज भी कर सकते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ओके। एंड फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट एमीटर हम यहाँ पे लगाते हैं इन ऑर्डर मेंटेन द करंट, कांस्टेंट करंट थ्रू द पोटेंशियोमीटर वायर। ये हमें इससे पता चलेगा whether the constant current is there in the potentiometer wire or not, ठीक है ना। So first and foremost we have to make it sure that a constant current is maintained throughout the wire of the potentiometer. Is this clear to you? Constant current, ठीक है। तो वो यहां से पता चलेगा if there is any change in the current due to somehow, ठीक है ना, so that current is to be वापस उसको अपने वैल्यू पे ला सकते हैं with the help of this rheostat. Is this clear? Okay. This is the auxiliary circuit here. अब जो मेन सर्किट है तो उसमें हमें क्या करना है, we will take a cell here, ठीक है ना। तो सेल ले लेंगे, एक सेल लिक्लॉज सेल ले सकते हैं, डैनियल सेल ले सकते हैं। तो इसकी एक रेजिस्टेंस होती है जिसको हम कहते हैं इंटरनल रेजिस्टेंस, वो भी दिखाएंगे हम यहाँ पे, ठीक है। ओके, दिस इज द लिक्लॉज सेल। इसका पॉजिटिव में यहाँ से नेगेटिव, इसकी इंटरनल रेजिस्टेंस आर से हम रिप्रेजेंट करेंगे, इसका ईएमएफ मान लीजिए ई है, ठीक है ना। ओके, अब इसकी इंटरनल रेजिस्टेंस मेजर करनी है। तो इंटरनल रेजिस्टेंस मेजर करने से पहले हमने ऑलरेडी एक थ्योरी, हमने रिलेशन डिराइव की है थ्योरी में, एक्सप्रेशन फॉर द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल। तो वहां पे हम जब इंटरनल रेजिस्टेंस मेजर करते हैं उसके साथ हम जो एक एक्स्ट्रा इंस्ट्रूमेंट हमें चाहिए यहाँ पे, वो है रेजिस्टेंस बॉक्स थ्रू वन वे की। दिस इज द रेजिस्टेंस बॉक्स हियर, इट इज टू बी कनेक्टेड through one way key across the battery. This is the one way key here, K2. This is K1 here. This is K1 key for the auxiliary circuit here. This K2 is the key for this main circuit here. Okay. तो ये खाली रेजिस्टेंस बॉक्स के लिए, इस लूप के लिए K2 है। Is this clear? This arrangement is then connected in the potentiometer. How? ये जो पॉजिटिव टर्मिनल है, पॉजिटिव टर्मिनल को हम कनेक्ट करेंगे इस तरह से पॉजिटिव टर्मिनल के साथ, दिस इज नेगेटिव टर्मिनल हियर और द पोटेंशियोमीटर। एंड जो इसका यहां से नेगेटिव टर्मिनल है, इसको हम कनेक्ट करेंगे थ्रू अ रेजिस्टेंस बॉक्स, थ्रू ए रेजिस्टेंस बॉक्स। दिस इज द रेजिस्टेंस बॉक्स सेकंड, दिस इज द रेजिस्टेंस बॉक्स फर्स्ट, ठीक है। अब लेट मी टेल यू वन थिंग, जो रेजिस्टेंस बॉक्स सेकंड है, इट इज नॉट नीडेड हियर एक्चुअली। इसका एक ही मकसद है, या आप नहीं भी लगा सकते हो, अगर नहीं लगाओगे तब भी काम करेगा ये। दिस इज रिक्वायर्ड ओनली फॉर द सेफ्टी ऑफ द गैल्वेनोमीटर, जैसे कि पहले मैंने बता दिया इससे पहले वाले एक्सपेरिमेंट में। दिस ओनली फॉर द सेफ्टी ऑफ आवर गैल्वेनोमीटर, अदरवाइज देयर इज नो नीड टू कनेक्ट द रेजिस्टेंस बॉक्स सेकंड इन दिस सर्किट। ओके, एंड नाउ यहाँ पे हम इसके साथ गैल्वेनोमीटर कनेक्ट करेंगे, या पहले ही गैल्वेनोमीटर कनेक्ट करेंगे या बाद में, या देयर इज, चलिए यहाँ पे मैंने पहले दिखा दिया। तो रेजिस्टेंस बॉक्स पहले कनेक्ट करेंगे, रेजिस्टेंस बॉक्स सेकंड, तो यहाँ पे गैल्वेनोमीटर लगाएंगे एंड देन गैल्वेनोमीटर के साथ जॉकी, देन जॉकी इज टू मेक अ कांटेक्ट समवेयर ऑन द पोटेंशियोमीटर वायर। ओके, जॉकी टच करेंगे हम जॉकी को कहीं पे भी, ठीक है। ओके, दिस इज द सर्किट डायग्राम। अब नाउ वी विल डिस्कस हाउ विल इट ऑपरेट, ऑपरेशन ऑफ दिस circuit. Okay, first and foremost what we do, we will insert a key here, ठीक है ना, this is the first step. And then when we insert the key here, this meter will show some deflection. It will from this you can see the current which is passed through this potentiometer wire. Okay, and you have to maintain this current at a fixed value, ठीक है ना।
और सुटेबल करंट होनी चाहिए और ज्यादा स्ट्रॉन्ग करंट भी नहीं होनी चाहिए. यू कैन एडजस्ट द वैल्यू ऑफ द करंट टू द पोटेंशियोमीटर विद दिस रीस्टेट. ठीक है ना, रीस्टेट की मदद से. इट इज अ वेरिएबल रेजिस्टेंस एज यू नो. दिस इज द रीस्टेट हियर, इसकी मदद से. ओके, एंड नाउ after maintaining the constant current throughout the potentiometer wire, then note that current. ठीक है ना, वो करना हमको नोट करनी है. Then insert the plug here and this second key K2. जब plug insert करें या पहले insert नहीं करेंगे, let it open. There are two cases. One for open circuit and second for closed circuit. हम किस सर्किट की बात कर रहे हैं? ये मेन सर्किट जो है. आई एम टॉकिंग अबाउट दिस मेन सर्किट. ये जो लूप है जहां पे हमने इंटरनल रेजिस्टेंस मेजर करनी है. आई एम टॉकिंग अबाउट दिस सर्किट, नॉट अबाउट दिस सर्किट. ये हमें हमेशा ऑन करके रखना है, इसको ऑफ नहीं करना है. ओपन रखना है इसको हमेशा, क्लोज नहीं करना है इसको. एंड फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट व्हाट वी डू, पहले ले लेंगे ओपन सर्किट. यहाँ पे जो प्लग है वो इंसर्ट नहीं करनी है. सो इट मीन्स दैट देयर विल बी नो करंट any case drawn from the cell which will pass through this resistance box. कभी भी यानी कि जब ये ओपन होगा तो उस वक्त इस ब्रांच में कभी भी करंट नहीं होगी. नो करंट. ठीक है ना, कभी भी करंट नहीं होगी. अगर करंट आएगी यहां से, वो यहां से निकलेगी, तो यहां से कोई करंट नहीं होगी. यानी सेल की कोई भी करंट या पार्ट ऑफ द करंट थ्रू द रेजिस्टेंस बॉक्स पास नहीं होगी. इज दिस क्लियर? ओके, फॉर द ओपन सर्किट. एंड नाउ स्टार्ट. Make a contact anywhere on the potentiometer, यानी कि press the jockey, जो jockey है ना, press it at any point on the potentiometer wire. First at the first wire, ठीक है ना, जो first wire है उस पे रखेंगे. And then note, यहाँ से पहले resistance introduce करेंगे. 1000 ohm, 2000 ohm, 10,000 ohm, जो भी suitable होगा. 1000, 10,000, तो 2000 या 5000 जो भी suitable होगा वो हमें यहाँ पे introduce करेंगे, ताकि for the safety of our galvanometer. Okay, and then make a contact here of the jockey at any point on the potentiometer wire. When you touch it here, you will see the deflection of the galvanometer. So deflection means that the current is flowing through this branch. इस branch में current flow हो रही है. अब वो जो current होगी, वो current या उसकी direction यहाँ से होगी. This would be the direction of the current. ऐसे मैं दिखा दूंगा. या डायरेक्शन ऑफ करंट इस तरह से होगी. ठीक है ना, एक केस ये है. दूसरा केस ये है कि उल्टी डायरेक्शन होगी, यहां से करंट आएगी. अगर यहां से करंट आ रही है तो इसका मतलब ये कब पॉसिबल है, जब इस पोर्शन जो वायर है ना, यहाँ पे ये जो पोर्शन ऑफ द वायर, पोटेंशियोमीटर वायर, जब इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल ड्रॉप होगा ड्यू टू ड्राइवर बैटरी, अगर वो ज्यादा होगा, अगर वो पोटेंशियल ड्रॉप यहाँ पे अक्रॉस द वायर वो ज्यादा होगा अक्रॉस दिस पोर्शन ऑफ द वायर AJ, तो उस वक्त डायरेक्शन ऑफ करंट ये होगी, इट विल फ्लो फ्रॉम A थ्रू द बैटरी, यहां से निकलेगी. इज दिस क्लियर टू द सेल? ओके, तो उस वक्त यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस ज्यादा होगी. यहाँ पे ये डिफ्लेक्शन दिखाया गया ज्यादा उस वक्त. अगर हम यहाँ पे इसको पॉजिटिव के साथ कनेक्ट करेंगे, यहाँ से नेगेटिव के साथ, इट विल शो पॉजिटिव डिफ्लेक्शन एट दैट टाइम. इज दिस क्लियर टू? ओके, अब अगर डायरेक्शन ऑफ करंट इस तरह से होगी रिवर्स में, ऐसा भी हो सकता है करंट यहां से आ जाए, तो उस वक्त EMF इसका ज्यादा होगा, जो इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो कम होगा, जैसे पहले भी मैंने बता दिया. ठीक है ना हम चाहते हैं कि इस लूप में करंट फ्लो में हो, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, यू हैव टू एडजस्ट द पोजीशन ऑफ द जॉकी. सपोज दिस इज द पॉइंट वेयर व्हेन वी प्रेस द जॉकी, एट दिस पॉइंट व्हाट हैपेंस, न करंट यहां से आ रही है न करंट यहां से निकल रही है. ठीक है ना, galvanometer shows null deflection at this point. Then the potentiometer is set to be balanced, जैसे पहले वाले एक्सपेरिमेंट मैंने बता दिया. तो अब अगर यहाँ पे बैलेंस हो गया, उसका मतलब क्या हुआ, तो यहाँ पे लेंथ नोट करेंगे, L1 be the balancing length, L1 be the balancing length. यहाँ पे दिखाएंगे थोड़ा दूर, L1, this is J here. L1 is the balancing length. क्या है balancing length? For the open circuit. अब ये बैलेंसिंग लेंथ हो गई ना, उसका मतलब क्या हुआ, जो सेल के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस है वही होगा पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस दिस सेगमेंट ऑफ द पोटेंशियोमीटर वायर. ठीक है ना. अब एज
the circuit is open, no current is drawn from the cell. ना यहाँ से current निकल रही है, ना यहाँ से current निकल रही है, because it is open circuit. For the open circuit, no current is drawn from the cell. Under this condition, when the cell is in the open circuit and no current is drawn from the cell, at that time the potential difference across the cell is called EMF of the cell. वो होगी EMF of the cell. ठीक है ना? Then for the open circuit, यहाँ पे मैं दिखा दूंगा. First for the open circuit, EMF of the cell is equal to potential drop across this segment of the wire. Potential drop across AG wire AG of length L1. L1 से मैंने इसको रिप्रेजेंट कर दिया L1. Is this clear? Okay, what is the potential drop across this segment of the wire? Potential drop across the segment of the wire depends directly on the what? Length of that segment of the wire. K times L. K L1. What is K? K is potential gradient. ठीक है ना? Okay, what is L1? L1 is the length, balancing length. Okay? तो उस वक्त जो इस पोर्शन के अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप होगा वही होगा सेल का EMF. Keep it number 1. And the second case is for closed circuit. Closed circuit. अब closed circuit के लिए, अब closed circuit के लिए क्या करना है हमें? Insert the plug here and this key K2. When we insert the key here, फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट जो रेजिस्टेंस बॉक्स है ना, इसमें से कुछ रेजिस्टेंस इंट्रोड्यूस करनी है. ऐसे नहीं लगाना है, यहाँ पे कुछ रेजिस्टेंस पहले इंट्रोड्यूस करनी है. फर्स्ट इंट्रोड्यूस सम रेजिस्टेंस, सपोज 20 ओम, 30 ओम, 50 ओम, व्हाटएवर. ठीक है ना? तो अब यहाँ पे जब रेजिस्टेंस इंट्रोड्यूस करेंगे 10, 20 ओम कुछ, देन इंसर्ट द plug here, and this time the current is drawn from the cell, whether you touch the jockey earlier on the potentiometer wire or not. But one thing is there, सेल में से करंट निकल रही है, वो यहां से जा रही है. ठीक है ना? दिस इज डायरेक्शन ऑफ द करंट थ्रू दिस लूप. ठीक है ना? वेदर यू टच इट हियर और नॉट, अगर आप टच नहीं करोगे कहीं पे तो इसका मतलब है यहां इस ब्रांच में करंट नहीं होगी, इस ब्रांच में. मगर अगर यहाँ पे करंट हो या ना हो, मगर इसमें हमेशा करंट रहेगी. बिकॉज इट इज क्लोज सर्किट, क्लोज लूप. ओके, अब मेक कंटैक्ट एनीवेयर. अब कहीं पे टच कराएंगे, पहले मेक कंटैक्ट, यहां से करंट निकल रही है. एट दैट टाइम व्हाट विल हैपन? तो उस वक्त अब जब आप कहीं पे टच कराओगे, दिस विल शो डिफ्लेक्शन. ठीक है ना? अगर यहीं पे रखेंगे जहां पे पहले था, तब भी ये डिफ्लेक्शन दिखाएगा. अब ये बैलेंस नहीं हो रहा है इस लेंथ पे. अब अगर ये इस लेंथ पे बैलेंस नहीं हो रहा, तो दूसरी लेंथ पे बैलेंस हो जाएगा, दूसरी पॉइंट पे बैलेंस हो जाएगा. यू हैव टू फाइंड आउट दैट पॉइंट. ठीक है ना? एंड इन दिस केस द बैलेंसिंग लेंथ विल डिक्रीज. नाउ फॉर द what closed circuit, the balancing length will decrease. balance length increase नहीं होगी, वो decrease हो जाएगी. ठीक है ना? तो मान लीजिए अब आएगा यहाँ पे J dash से रिप्रेजेंट करेंगे J dash. This is the point J dash. अब इसके लिए बैलेंस लेंथ वो हम L2 से रिप्रेजेंट करेंगे. अब यहाँ पे बैलेंस हो रहा है, जब J dash पे बैलेंस हो रहा है, तो उस वक्त जो इसका मतलब क्या है, जो इसके अक्रॉस, इस पोर्शन के अक्रॉस L2 की जो लेंथ है, जो पोटेंशियल ड्रॉप होगा वो होगा पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द सेल. एंड इन दिस केस सेल से करंट निकल रही है, वो यहां से नहीं जा रही है, वो जा रही है यहां से थ्रू दिस रेजिस्टेंस बॉक्स. ठीक है ना? सो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द सेल व्हेन द सेल इज इन द क्लोज्ड सर्किट एंड दिस करंट इज ड्रॉन फ्रॉम द सेल इज कॉल्ड पोटेंशियल डिफरेंस, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ द सेल. उसको कहते हैं टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ द सेल अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन. तो इस वक्त ये EMF नहीं होगा. EMF जो इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस होगा, जो हम पोटेंशियोमीटर से हमें पता चलेगा. पहले वाले केस में जब क्लोज ओपन सर्किट होगा उस वक्त उसको हम कहते हैं EMF. जब क्लोज सर्किट होगा उसको सेल में से करंट निकलती है, और उस वक्त जो पोटेंशियोमीटर हमें इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस दिखाएगा उसको कहते हैं टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ द सेल. सो देयरफॉर दिस इज EMF ऑफ द सेल. EMF ऑफ द सेल, देयरफॉर टर्मिनल potential difference of the cell. ठीक है ना? वो हम V से रिप्रेजेंट करेंगे. It is equal to potential drop across the segment of the wire. What is the potential drop across the segment of the wire? अब जो ये पोर्शन है L2, it is K L2. Keep it number second. Dividing first by second. What will you get? यहाँ पे दिखाएंगे. जब हम डिवाइड करेंगे, E by V is equal to KL1 divided by KL2.
K cancels, you will get E by V equal to L1 divided by L2. This is the ratio between EMF and thermal potential difference of a cell. Is this clear to you? अब ये हमें जरूरत है, इसकी जरूरत है, तो ये मैंने दिखा दिया यहाँ पे। तो जरूरत कहाँ पे है? अब इंटरनल रेजिस्टेंस मेजर करेंगे। इंटरनल, एज यू नो दैट, जो हमने पहले थ्योरी में डिस्कस किया है, द एक्सप्रेशन जो हमने डिराइव की है, एक्सप्रेशन फॉर द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ अ सेल, द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ अ सेल इज गिवन बाय R into EMF of cell divided by terminal potential difference of cell minus 1. This is the expression for the internal resistance of the cell. ठीक है ना? This is the internal resistance of the cell, R. Internal resistance of the cell. Okay. What is all the resistance from this resistance box? जो हम यहाँ पे इंट्रोड्यूस करेंगे, जो लोड रेजिस्टेंस है इस वक्त, और इज द लोड रेजिस्टेंस अक्रॉस द सेल। इज दिस क्लियर टू यू? वही और हमें यहाँ पे नोट करना है। व्हाट इज E by V? E by V हमने यहाँ पे निकाला, ये पुट करेंगे यहाँ पे। We will get this is a theoretical expression। आप इसको एक्सपेरिमेंटल एक्सप्रेशन में कन्वर्ट करेंगे, तो एक्सपेरिमेंटल एक्सप्रेशन में कन्वर्ट कैसे होगी? R E by V जो रेशियो है, इसके बदले L1 by L2 लिख सकते हैं, -1। एंड दिस इज व्हाट वी कॉल द experimental expression for the internal resistance. This is a theoretical expression. ठीक है ना? जो theoretically हम ये डिराइव करते हैं, तो experimental के लिए जो हम एक्सपेरिमेंट करेंगे, इंटरनल रेजिस्टेंस मेजर करनी होगी, उस वक्त हम ये एक्सप्रेशन हम यूज करेंगे। तो इस तरह से मैंने दिखा दिया यहाँ पे कैसे हमें सर्किट बनाना है, कैसे ऑपरेट करेगा, एंड एक रीडिंग, एक सेट ऑफ रीडिंग मैंने दिखा कैसे लेनी है। ठीक है ना? देन यू हैव टू एडजस्ट द वैल्यू ऑफ द रेजिस्टेंस फ्रॉम दिस रेजिस्टेंस बॉक्स। देयर आर टू वेज, जैसे हम ये डिफरेंट रीडिंग्स सेट ऑफ ऑब्जर्वेशंस ले लेंगे। एक तरीका ये है, दो तरीके हैं। एक तरीका ये है कि हम करंट को कांस्टेंट रखेंगे और ये रेजिस्टेंस चेंज करेंगे। एक सेट ऑफ ऑब्जर्वेशन ले लेंगे हम, एक वैल्यू पे रेजिस्टेंस, जो रेजिस्टेंस बॉक्स है, एक वैल्यू रखेंगे, फिर दूसरा वैल्यू रखेंगे, तीसरा वैल्यू, 3 सेट्स ऑफ ऑब्जर्वेशंस ले लेंगे। या एक दूसरा तरीका ये है कि ये और लोड रेजिस्टेंस हम कांस्टेंट रखेंगे, यहाँ पे हम करंट चेंज कर, जैसे इससे पहले वाले एक्सपेरिमेंट में हमने किया, पहले 100 मिली एम्पियर करंट रखेंगे, फिर एक सेट ऑफ ऑब्जर्वेशंस ले लेंगे, फिर 120 मिली एम्पियर करंट रखेंगे, तो सेकंड सेट ऑफ ऑब्जर्वेशंस लेंगे। तो इस तरह से ले सकते हो, या आप ये चेंज कर सकते हो, या दोनों भी चेंज कर सकते हो, उस तरह भी आप इसको कर सकते हो। इज दिस क्लियर टू यू? तो हम इस वाले एक्सपेरिमेंट में क्या करेंगे? वी विल कीप दिस कांस्टेंट थ्रू द एक्सपेरिमेंट। ठीक है ना? We will change only the resistance from this resistance box. We will take different sets of observations. One set of observation at one value of the resistance box, from the one value of the resistance from this resistance box, and then second set of observation at the different value, and then so on. Is this clear to you? तो इस तरह से हम ये करेंगे। अब यहाँ हम दिखाएंगे कि कैसे एक्सपेरिमेंट करना है, वो अब नेक्स्ट सेकंड वीडियो में होगा।